students, welcome back. We have started economics second book, Indian Economic Development, where we are doing our first chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. Till now we have studied that British have come to India after 1757, after the Battle of Plassey, and how the economic development was there on the eve of independence. Agricultural sector we have studied. Now let's move ahead. We will study now factors causing backwardness and stagnant of Indian agriculture during the British rule. Why our Indian agriculture became stagnant and backward? Okay. Reasons for stagnation. Land settlement system. What do you mean by land settlement system? I have told you that there was zamindari system, means there were landlords. That time there were landlords, there were zamindari system which was introduced during the colonial government. The profits of those time, the agricultural sector, the farmers were not getting the profits. The zamindar, who were the mediators, who were the middlemen in between, they used to get all the profits. Their main aim was to collect rent from the cultivator or the farmers, and they used to collect rent at any cost, whatever the farmer is having or not, his condition is there or not, his full agriculture is spoiled. They were not ready to listen. I have told you the rent they were collecting is called as lagan, right? This was land settlement system. There were other reasons also. Commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means they were forced to grow only commercial crops at larger level. Then there were low level of technology due to lack of knowledge, means and incentives for modernization. The farmers in India were illiterate and they were not having technological knowledge. Because of that, also modern incentives were not there. There were no modern machineries. We were using all traditional and outdated methods, due to which the agriculture was not improved. There were lack of irrigation facilities. We were not having proper dams, proper water facilities, and so the crops were also not able to grow in a good manner. Negligible use of fertilizers. The fertilizers also were not available to the farmers during that time. These were the reasons for stagnation. Our agricultural level going down and down. Now, what is commercialization of agriculture? Commercialization means to make profit from agriculture. The British industrialists were always in need of raw materials. I have told you in before lecture that we have seen India was the exporter of raw materials. हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन, और वहाँ से सारे फिनिश गुड्स यहाँ आते थे. तो वहाँ ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बार बार रॉ मटेरियल्स की डिमांड करते थे. रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, इस तरह से, ताकि वो उनकी फैक्ट्रीज को अच्छे से चला पाए. अब बाय ऑफरिंग हायर प्राइजेस द इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. तो ब्रिटिश ने उनको लालच दिया कि अगर आप ये वाले कमर्शियल क्रॉप्स, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब बनाएंगे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, तो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे. पैसों का लालच दिया था. इसलिए फार्मर्स भी फूड क्रॉप्स की बजाय ये क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए. द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर went so far as to make peasants purchase their food requirements from shop in towns. खुद के लिए फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो करने के वजह से खुद वो अपने फूड के लिए शॉप से परचेज करते थे, और वो लोग कैश क्रॉप्स यानी कॉटन, इंडिगो, जूट पे ज़्यादा ग्रो करने पे कॉन्सेंट्रेट करते थे.
This fall in production of food crops was responsible for frequent famines in India during the British days. उस वजह से हमारे यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई और उस वजह से हमारे पीपल फेस करने लग गए फैमिन्स और ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगे कि अब यहाँ पर दाने दाने के वो लोग मोहताज हो रहे हैं. So, growing of cash crops instead of food crops is known as commercialization of agriculture. Understood? Okay, this is commercialization of agriculture. Next is industrial sector on the eve of independence. What is industrial sector on the eve of independence? वो क्या होता है? राइट वो है अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने क्या किया था. इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल. हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रही थी बिकॉज ब्रिटिश उनको ग्रो होने के लिए नहीं दे रहे थे. इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी ब्रिटिशर्स ने उनको भी ज़्यादा ग्रो नहीं करने दिया और वो डिक्लाइन होती जा रही थी. नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. यानी नए कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अगर कोई नई इंडस्ट्रीज़ आने के लिए करे तो वो भी ब्रिटिशर्स आने नहीं दे रहे थे. दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन ताकि वो नए नए चीज़ें लाए तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े. बट ब्रिटिशर्स ने वो अलाउ किया ही नहीं. डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. वो लोग डाइवर्सिफाई यानी अपनी अपनी चीज़ें मॉडर्न करना चाहते थे, अपना ग्रोथ करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट और कराना चाहते थे. बट ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो ही नहीं करने दिया इंडिया में. ओके This was the industrial sector during the British rules. The primary motive behind this policy of deindustrialization was to reduce India to the status of mere exporter. उन्होंने क्या बोला, नहीं आप एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप सिर्फ रॉ मटेरियल्स को पे कॉन्सेंट्रेट करो. फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन. रॉ मटेरियल्स किसके लिए? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए. टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन. उन्होंने इंडिया की मार्केट को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बना दिया और ब्रिटेन के मार्केट के फिनिश गुड्स लाकर यहाँ बेचना शुरू कर दिया. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लो एज नो हेल्प वॉज बीन प्रोवाइडेड टू दीज इंडस्ट्रीज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे जिससे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हो सके. कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. इन्होंने टैरिफ पॉलिसीज़, टैक्स पॉलिसीज़ ये सब लगाना शुरू कर दिया. राइट उससे क्या हुआ कि यहाँ पर से जो रॉ मटेरियल्स जा रहे थे वो बहुत ही सस्ते दामों पे जा रहे थे और उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था. एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया. वहाँ से फ्री इम्पोर्ट्स हो रहे थे ताकि ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो सस्ते हो जाए. इस वजह से भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई थी. द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. क्योंकि यहाँ पर अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो ट्रेडिशनली चलते आ रही थी वो अब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी, कम होते जा रही थी. उस वजह से अब लोगों के पास कोई काम नहीं बच रहा था और वो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये सारी प्रॉब्लम्स के वजह से भी हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए था ही नहीं. अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो हाउ दे विल कंटिन्यू देयर लाइवलीहुड. उनको मनी क्राइसिस आना और पॉवर्टी भी आना
शुरू हो गई थी. The fall in supply of locally made goods created a demand for import of British goods much to their advantage. क्योंकि हमारे यहाँ के गुड्स बन ही नहीं पा रहे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की जो डिमांड थी वो इम्पोर्टेड गुड्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स से हो रही थी. दिस वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये सब उसके रीजन से. ओके, गेट दैट.